नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज के रिव्यूज़ आपके आए हैं, बहुत अच्छे हैं। एपिसोड भी बहुत अच्छा था। अनुपमा को कंपटीशन में अनुज ने हेल्प की। आद्या की सॉरी को अनुज ने नहीं एक्सेप्ट किया, तो बहुत अच्छा सा एक गया था। और पाखी के बारे में भी हमने देखा। आपके रिव्यूज़ भी बड़े ही प्यारे और इंटरेस्टिंग हैं, सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सुनते हैं आपके रिव्यूज़। Namaste Anju ma'am, happy anniversary to you and Naveen sir. Many blessings and sending my prayers for many more years of togetherness. सबको नमस्ते और धन्यवाद मेरा वीडियोस पसंद करने के लिए और सबको मेरा प्यार। टीना जी, आप कैसे हो? टीना जी, वर्षा जी, मनीषा जी, महिमा जी, रीटा जी, कुमुदनी जी, सीमा जी, रीटा जी और राधिका बीनू जी, सबको मेरा प्यार और धन्यवाद। आप सब का आवाज़ बहुत अच्छी है। Anju ma'am, yesterday I sent my video but it did not air today on public voice. Was there a problem? Yeah, so today's episode was very interesting because of the competition of Anupamas. And let's get started with the episode. And it started with them, the Shahs and Anupama praying to God. And I think she blows, I don't know what she blows, but then they all wish her. And then Paki comes. Paki wants to go for vaccine. And her daughter, I think, is sick. And she doesn't want to take care of her daughter. She's so self-centered. What kind of a mother she is. Many mothers will sacrifice little big things for their children, and this woman is so selfish. Yeah, so then she gets annoyed that her daughter is asking her to stay with her. This Paki is so ruthless to her own daughter, and how much of drama she did to do an IVF to get the daughter. Yeah, so then Anupama would shout at her and tell her that if I had to say this to you, that you're bugging me and boring me, would you have been this big? And then Ba also gets upset, and she just leaves and says, all of you are irritating. For a change, Vanraj said that Hardik was a better father, and she leaves. And then Babuji tells Anupama it's late, she has to go for the competition. So yeah, then Anuj and Adya, I don't know why Adya's saying sorry. She's singing a song to Anuj saying, you're my dad, I'm sorry. And then Anuj tells them that this is not right. You have to understand I'm human too, and I have my own feelings. I just cannot leave my feelings in a just like that. So you have to understand, both of you, and give me my space and my time to think. I'm human. I just cannot leave everything and sacrifice for you people just because you want what you want. And he gets annoyed and he leaves. So I do not know what happened when she took the promise. So we will see if they continue the scene. But when he is driving, he will be thinking that how will I help Anupama in the restaurant? Adya, the stupid Adya, has taken this promise. I think he's given her the promise. And he'll say, somebody please come up to help and to, buy the restaurant. And then they show Anupama at the competition.
that it's a difficult competition. They explain the rules, and now the time is only 15 minutes, and how she has to cook with the ingredients provided to her. Yeah, so then they all go back to the stations, and then this guy, white guy, the grumpy guy, I think he has some personal grudge on Anupama, or somebody has tipped him or something, because he is intimidating Anupama and kind of trying to make her nervous. He says, "Is it up for your game, lady? Are you able to do this with one hand? Poor lady, Anupama Joshi, I hope you can do this with one hand." And he was trying to make her nervous. And then she sees the ingredients, and she is like wondering what should she prepare with that. Then while Anupama starts preparing, she thinks she's going to prepare a sweet dish. However, she is unable to open the clarified butter can, because she doesn't know how to use the can opener, and she's nervous. On top of that, they are all giving the rules, the judges, that everything should be clean, their station should be clean, they have to note about the ingredients, everything should be perfect. So they will look upon all those points for them to pass, and the dish has to be delicious. And this grumpy guy is constantly targeting Anupama. I think somebody tipped him off, because no judge would simply target you he's targeting Anupama, and he's purposely making her nervous. So she's getting so nervous that almost the time is getting over. Then she sees Anuj, and she remembers that this round they can take help from the audience. So Anuj looks at her and calls her name, Anupama, and then she sees, and then he'll tell her, "Come fast," and he'll open the clarified butter can. It's ghee, yeah. And she will go. When she pours it, she's so nervous that it slips from her hand and falls down. The time is up, and the grumpy judge, everybody are looking at her. The grumpy judge is like, and she bends to pick it up, and he says, "No, the time is up." He's shouting at her. I don't know, someone is involved in this, because he is overly threatening her and making her feel bad about herself. So then all of them present their dishes, and when it's Anupama's turn to present her dish, she tries to explain. They ask her to explain what is the dish. She's trying to explain, and she thinks that, the sweet she prepared was sweet that they prepare for the god, but she couldn't prepare that also nicely. And while she's explaining, she forgets that she's talking in Hindi, and then suddenly the grumpy judge says, "This is not an Indian show, you have to explain it to us in English." And then it just ends. There was no pre-cap, but I think the pre-cap is the same, where Anuj is going to be her translator. And let's hope. I also saw an article today, a very strong article, that the director Ranjan Shah is planning the death track for Anuj. Anyway, that's all for today. Thank you, Anju ma'am. Thank you to all. Love you all. Happy festivals to you all. Bye-bye. Good night. हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज अनुपमा का आरती करना और शंख बजाना, बा का अनुपमा के लिए इतनी केयर करना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बा तभी ऐसा कुछ करती है जब बा का उसमें फ़ायदा होता है। जैसे बा ने कहा कि सब पैकिंग कर लो जाने की, तो मुझे लगता है कि बा ज़रूर ये सोच रही होगी कि हम तो सब यहाँ से चले जाएंगे, बट अनुपमा जही रहेगी, तो जब वो कंपटीशन जीत जाएगी तो तोशु का कर्जा चुका देगी। तभी तो बा इतनी मीठी बनी हुई है अनुपमा के साथ, क्योंकि बा कब रंग बदल ले पता नहीं चलता। उधर पाखी के बारे में क्या ही कहें, एक तो बेटी ठीक नहीं है पर उसे जाना है। पहले माँ बनने के लिए मरी जा रही थी, अब बेटी की परवाह ही नहीं है, सिर्फ अपने ऐशो आराम के बारे में सोचना है। आज आरुष से मिलने गई तो पता चला कि उसने पहले भी उसे पैसे दिए थे और अब कंगन भी ले आई उसे देने के लिए।
और ये जो पाखी को घर में लेकर आया है और उसे एंजॉय करने के लिए कह रहा है, ये ज़रूर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसकी ड्रिंक में मिला देगा और शायद कहीं पाखी के साथ कुछ गलत ना कर दे। डर तो इसी बात का लग रहा है, और अगर अभी भी ये लड़की नहीं संभली तो बाद में जब कुछ गलत हो जाएगा तो बहुत पछताएगी। आज अनुज ने अपने अंदर का सारा दर्द दोनों के सामने रखा कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी दुख होता है, कुछ चीज़ों को सही करने में टाइम तो लगता है, कब समझोगी तुम दोनों। ये आद्या और श्रुति सिर्फ अनुज को अपना पोपट समझती हैं और कोई लेना देना नहीं है इससे। आज आद्या का गाना गाकर अपने पॉप से सॉरी मांगना ये सिर्फ एक दिखावा है, आगे चलकर फिर से अनुज के साथ बदतमीजी से पेश आएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। आज अनुपमा का कंपटीशन में जाना और जज ने जो सामान दिया था उसे 15 मिनट में बनाना था। सबको अलग अलग डिश दी गई बनाने के लिए। मुझे एक जज बहुत अजीब सा लगा जो अनुपमा से बहुत रूडली सा पेश आता है। आज भी वो जब बार बार अपनी बातें रख रहा था तो अनुपमा डर रही थी उसकी बातें सुनकर। फिर अनुपमा का अपने आप को हौसला देकर काम में लग जाना। एक बात मुझे आज बहुत बहुत खुशी दे गई कि कान्हा जी का इशारा देखिए, अनुज को वहीं भेज दिया जहां उसकी अनुपमा थी। कान्हा जी भी चाहते हैं कि मान मिल जाएं, बट ये दोनों कब समझ पाएंगे पता नहीं। एक मोमेंट भी मान का हमें खुशी दे जाता है। आज लास्ट में घी का डब्बा ना खुलना तो अनुज अपनी अनुपमा को कहता है कि इधर लेकर आओ, टाइम कम है। दोनों अपनी परेशानी भूलकर एक दूसरे की तरफ खींचे चले गए। सच में मज़ा आ गया ये सीन देखकर, कैसे अनुज ने अपनी अनुपमा के हाथों को टच करके डिब्बा पकड़ा। ये सीन सुपर डुपर हिट था आज मान का। आगे देखते हैं मैम क्या होता है। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। और आज 131वीं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज तो रैली भी थी हमारा, लेकिन मैं यहाँ सूरत में हूँ और मेरे पापा भी ठीक है, मैं उन्हीं के पास हूँ। वो नीचे आराम कर रहे हैं, मैं ऊपर आके बैठी हूँ और ऑडियो बना रही हूँ। और मेरी सभी बहनों को थैंक यू सो मच, मुझे इतना साथ देने के लिए और मुझे मेरी इतनी हिम्मत बढ़ाने के लिए। सभी को, अंजू जी आपको और नवीन सर को भी, कल उन्होंने भी मुझे हिम्मत दी उसके लिए। और कल का और आज का एपिसोड के बारे में कहूँगी, सच में आद्या जैसी बेटी भगवान किसी को ना दे, जिसे अपने बाप की एक भी पैसे की पड़ी नहीं है, खुद की खुशी चाहती है बस, और कुछ नहीं। बस वो खुश रहे, उसी से उसे मजा है, बाकी उसके पापा की खुशी हो या ना हो। लेकिन आज बहुत अच्छा सीन लगा जब वो माना नहीं। अनुज बहुत कम रूठता है और जब रूठता है तो उसे मनाना बहुत मुश्किल होता है। ये बात अब ये दोनों श्रुति और आद्या को समझ में आएगी। आज जिस तरीके से उसने जवाब दिया कि मुझे प्रेशराइज मत करो, बिल्कुल सही था। और कैसी बेटी है जिसे अपने बाप की खुशी तक नहीं परवाह नहीं है। अपने पापा की खुशी किस में है वो एक बेटी अच्छे से समझना चाहिए। अरे आज तुम उस घर में हो तो उसी अनुपमा की वजह से, और तुम्हें इतने अच्छे पापा भी मिले हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें ना उस पापा की कदर है ना उस माँ की कदर है। और क्या गलती की है अनुपमा ने इतनी बड़ी, जो तू इतना उसे नफरत कर रही हो, जिसने अपने सपने को बाजू पे रख के तुम्हारे लिए वापस आई, तुम्हें संभाला, और आज कह रही हो कि सिर्फ मैं उससे नफरत करती हूँ। वाह बेटा। और जो प्रायोरिटी की बात तुम श्रुति से कर रहे हो, क्या आता है श्रुति को? हमने तो नहीं देखा उसे संभालते हुए। तुम्हें पैनिक अटैक आते थे तो अनुज को ही फ़ोन कर देती थी, संभालता तो तुम्हें अनुज ही था। खाना तक से अनुज बनाता है, ना उसे खाना बनाना आता है, ना सिलाई कढ़ाई करनी आती, कुछ भी नहीं आता। और कल तो ड्रेस ही मैडम ने जला दी। वाह क्या बात है। अरे एक इंसान को इतना भी मत पुश करो कि कल चल के वो कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए या डिप्रेशन में ना चला जाए। और आज सच में मुझे बहुत अच्छा सीन लगा कि कान्हा जी कैसे मिला रहे इन दोनों को, कि जिस जगह पे वो
कंपटीशन शुरू है, वहीं पे वो जिससे मिलने आया है वो भी एक शेफ को ही मिलने आया हुआ है, जिन्होंने उसे वहां पे बुलाया अनुज को। और आज जिस तरीके से अनुज ने अनुपमा को आवाज दी, सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। दोनों को इतना प्यार है, कान्हा जी इशारे दे, लेकिन ये दोनों इडियट समझते हुए भी ना समझ बन रहे। और ये पागल है क्या अनुज? उसे क्या लगता है अनुपमा उससे प्यार नहीं करती? अरे कपाड़िया जी, आप तो अनु की आंखें पढ़ लेते थे, आज आपको अनु की आंख में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वो प्यार तक नहीं दिखाई दे रहा है। जब आप आज वो खुद आपके पास आपने आवाज़ दी तो वो आई डब्बा खुलवाने के लिए, तब भी आपको नहीं समझा क्यों कितना प्यार करती है आपसे। आपने कैसे सोच लिया कि अनु आपके पास आना नहीं चाहती, प्यार नहीं करती? अरे बहुत करती है, लेकिन आपकी बेटी है ना बदतमीज, उसकी वजह से वो नहीं आ रही। और ये पाखी इडियट है क्या? पैसे दे के मन नहीं भरा जो अब सोने के गहने देने के लिए गई है। ये लड़का सच में फ्रॉड है। जो कल टीटू ने बताया था कि वो इंडिया नहीं जा पाएगा क्योंकि वहाँ उसका पकड़ लेंगे, और वहाँ पे भी वो अमीर घर की लड़कियों को फंसाता है और सब पैसे सब लेके निकल जाता है, और यूएस आ गया वो। और एक अभी भी वो जो फ्रेंड की उसकी जो बहन है जो आज भी ट्रोमा में है, डिप्रेशन में गई हुई है। समझाया डिम्पी ने, लेकिन नहीं, जब ठोकर लगेगी तब ये अकल आएगी इसको। और वो वैसी ही है, जब ठोकर लगती तभी जाके सीखती है, कोई बताएंगे तो उसके कान में जू तक नहीं रेंगती। और किस तरीके से अपनी बेटी से बातें करती है, वाह, बेटी बीमार है और खुद वहाँ गई है। छी, माँ बनने के लिए तो मरी जा रही थी, अब माँ बनी तो माँ भी नहीं बन पाई ढंग से। सही कहा कि बाप का प्यार मिल रहा था, इतना तो केयर मिल रही थी, तो उसके पास ही क्यों नहीं रखा? खुद तो पोस ही नहीं सकती है बेटी को। और ये श्रुति को समझ आ रहा है कि अनुज नहीं करता प्यार, और 26 साल से जो इंसान प्यार करता आया, 5 साल की नफरत भी वो नहीं भुला पाई। 1 मिनट में अनुपमा को देखते बराबर उसके पूरा गुस्सा गायब हो गया। वो क्या ही भूलेगा अनुपमा को? फिर भी शादी के लिए मरी जा रही है और खुद ही बोल रही है कि मैं जानती हूँ कि तुम अनु से प्यार करते हो, लेकिन फिर भी तुम ट्राई कर सकते हो। अरे कैसे ट्राई करेगा इंसान? जब प्यार ही नहीं तो ट्राई कहाँ से करेगा? तुम पीछे हटो ना, वो नहीं होगा उससे। मुझे तो ना श्रुति का मुंह देखने का मन करता है, ना ही आद्या का। अरे वो इंसान है, कोई एक लाश नहीं है। करवा दो एक लाश की शादी, करवा के कौन सा पुण्य का काम करने वाली हो तुम? जब प्यार ही नहीं है तो शादी करे ना करे क्या फर्क पड़ता है? एक जिंदा लाश बन चुका है अनुज। लेकिन ये बेटी नहीं सुधरेगी। और कल सच में बा वाला सीन बहुत अच्छा लगा, जो उन्होंने अपनी धरोहर दी है, डायरी। सच में बहुत अच्छा सीन था। और एक फौजी को लड़ना सिखाया कि फौजी मैदान छोड़ के कैसे भाग सकता है। बिल्कुल सही है। अब देखते कल क्या दिखाते, लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा। कल का एपिसोड भी अच्छा था और आज का भी उतना खास नहीं था। जैसे विक्रम भाई, केडी सब उल्टा बोल रहे थे, लेकिन अनुपमा ने समझाया, समझ भी गए और आज साथ देने को भी तैयार है कि हमारी तो नौकरी गई, हमें तो मिल जाएगी, लेकिन उनका तो धंधा ही बंद हो गया। ये बात तो सही है। लेकिन सच में कल का भी एपिसोड बा वाला सीन कहे या बीजी वाला, बीजी भी परेशान है, वो भी बीमार पड़ गई। उन्हें भी हौसला दिया अनुपमा ने। आज खुद के पास रहने की छत नहीं है, काम नहीं है, फिर भी वो हौसला दे रही है। विक्रम भाई, केडी, राहुल, यशदीप जी और बीजी को भी। ये है हिम्मत। और आपके कल के सारे रिव्यू अच्छे थे अंजू जी। और रेखा जी, आपके बेटे को विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और अंजू जी, कल मैंने ऑडियो नहीं भेजा, लेकिन आज भी मैं विश करती हूँ आपको कि हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आज का सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, कंपटीशन वाला। जो अनुज आया, जाना नहीं चाहता था अंदर, लेकिन वो लेडी बुलाने आई कि आपको अंदर बुला रहे, ऑडियंस में बैठा है। अब देखते हैं उसकी बेटी और कौन से तमाशे करती है बाप को अगर वहाँ देख लिया तो। लेकिन मदद करेगा अनुज, पैसे से मदद नहीं करा। जिस तरीके से आज कार में भी बैठा था तो बोल रहा था कि मैं कैसे मदद करूँ, मेरी बजाय अच्छा होगा कोई और हेल्प कर ले, आद्या की वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अरे तो आद्या कोई तोप है? तुम्हारी जिंदगी है। और श्रुति के अब भी बीवी तो बनना बाकी है, उससे पहले बीवी का हक जता रही है।
कि मुझसे एक बार बात करने की भी तुमने ज़रूरत महसूस नहीं की। अरे क्यों करे? उस बंदे को कुछ देर के लिए तो अकेला छोड़ दो। दोनों की दोनों नंगी तलवार की तरह उसके सर पे लटकती रहती हो। कुछ तो शर्म करो। लेकिन सच में आज इन दोनों के बारे में बोलने का मन कर रहा है कि जब पता है कि अनुज मुझसे प्यार नहीं करता, सब कुछ समझती है, सब अपने ही मुंह से कबूल भी करती है, फिर भी उसे अनुज चाहिए। क्यों? इससे अच्छा तो तुम्हें अक्ल आनी चाहिए कि मैं अनुज को छोड़ दूं, कि उनकी खुशी आज भी अनुपमा है। अरे नहीं भूलेगा बंदा, कभी नहीं भूल पाएगा, चाहे श्रुति कितना भी कर ले। और अब तो कान्हा जी खुद हिंट दे रहे हैं इन दोनों को। लेकिन नहीं, जिस दिन अनुज को ये पता चलेगा कि उसकी अनु आज भी उससे प्यार करती है ना, फिर देखो उसका कमाल, सब कुछ छोड़ छाड़ देगा, लेकिन फिर अनुपमा को अपनी ज़िंदगी में ला कर ही रहेगा। आज वो सिर्फ यही सोच रहा है कि मेरे अनु मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे पास नहीं आना चाहती, मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहती। लेकिन वो कैसे रखे? तुम्हारी वो नालायक बेटी की वजह से वो चुप है। लेकिन सच में बहुत अच्छा दिखा रहे हो, अच्छा लग रहा है एपिसोड। इतना प्रेशर अनुज नहीं झेल पाएगा, और श्रुति को सब पता होने के बावजूद भी नहीं सुनती, ना समझ रही है कि अनुज को वो छोड़ दे। कल भी कह रहे मुझे लग रहा है कि मैं कहीं चली जाऊं, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। और तुम्हें कौन मजबूर कर रहा है? जाओ ना, जाओगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और अनुज ही पागल है, एक बार कह नहीं सकता कि भाई तुमको रहना है, राध्या तुम्हें रहना है तो रहो तुम श्रुति के साथ, लेकिन मुझे मत कहो कि मुझे शादी करनी है। मैं शादी नहीं करूँगा, और मैं अपने अनु के पास जा रहा हूँ, और रहना है तुम दोनों रहो, मैं अलग रहता हूँ। लेकिन नहीं, हमारे अनुज का पाड़िया का तो कठपुतली बने रहना है, गूंगा गुड्डा बने रहना है, एक रोबोट बन के रह गए। जैसी चाबी डाली राध्या ने वैसे चलेंगे, और उतना ही चलेंगे, फिर स्टॉप। आद्या उम्र के हिसाब से ज़्यादा बड़ी नहीं दिखा रहे, 12 साल की बच्ची इतना भी नहीं बोलती है जितना वो बोल रही है। और अनुज की डेथ तो नहीं दिखानी चाहिए, अगर वो दिखाए तो सीरियल में कोई मज़ा नहीं रहेगा। सब लोग मान को देखना चाहते हैं, लेकिन ये लड़की ना सुधरी है और ना ही सुधरेगी, और इतनी जल्दी तो नहीं सुधरेगी। और तो छी, क्या घटिया है वो। कल कह रहा है कहीं मम्मी यहाँ आके डेरा ना डाल दे। वाह बेटा, सही कहा किंजल ने, क्या अगर तुम्हारी बेटी तुम्हें बोझ समझे तो। मैं वैसा नहीं बोल रहा था, मम्मी के भाषण से मुझे प्रॉब्लम है। हरकतें वैसी करोगे तो भाषण तो मिलेगा ही ना। बहुत अच्छा तो काम कर रहे हो, चोरी की, गुंडों के साथ संबंध है, और एक्सपेक्टेशन रखते हो कि तुम्हें कोई कुछ कहे भी ना, एक अच्छे बाप नहीं बन पाए, ना एक अच्छे पति बन पाए और खुद को, और ना ही एक अच्छा बेटा बन पाए। फिर भी गरूर तो देखो उसका, जैसा बाप वैसा बेटा। और कल टीटू ने भी कह दिया, और वो दोनों को वनराज ने देख भी लिया। खुद की बेटी की हरकतें तो देखता, थोड़ी देर और रुक जाता, वहाँ पे दिख जाती उसकी बेटी कैसे हाथ में हाथ डाल के घूम रही है उस आयुष के साथ। और जो टीटू ने कहा था बिल्कुल सही दिख रहा है, आज उसकी हरकत से ही पता चल रहा है। पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा, कहीं ड्रेक ना दे दे। देख तो रहा ही है, चैंपियन तो वहीं पे पड़ी है, अब पता नहीं क्या होगा उसके साथ। देखते अब कल क्या दिखाते हैं। कल भी मुझे टाइम मिलेगा ऐसे ही ऑडियो भेज दूंगी। और मेरी सभी बहनों को फिर से मुझे हौसला देने के लिए, और अंजू जी आपको भी और सर को भी मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच। और सुचि रवि जी, रानी महेंद्रू जी, सुजाता जी, आप सबको भी, जितनी हमारी लाइव चैट पे बहनें उन सबको भी मैं थैंक यू सो मच कहती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ मुझे मेरी इतनी हिम्मत बढ़ाने के लिए। थैंक यू अंजू जी, बाय। कल डिम्पी ने भी बाकी को समझाया कि एक बार तुम खुद ही चेक करो, लेकिन नहीं, इसको चेक नहीं करना है, इसको किसी की भी बात नहीं सुननी है। तो जाओ, जब गड्ढे में गिरेगी तब अकल आएगी इसको। और मेरी सभी बहनें, मनीषा जी, वर्षा, रीटा जी, एबी जी, कुसुम जी, राधिका, बीनू, सब भी हमारे लाइव चैट की बहनें हैं,
पूर्वी जी, जितने भी बहनें हैं उन सबको थैंक यू सो मच मेरा हौसला बढ़ाने के लिए और मेरे पापा के बारे में फिक्र करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। थैंक यू, बाय। अभी लाइव चैट पे मिलती हूँ। थैंक यू अंजू जी, सॉरी लंबा हो गया। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और सूर्यपुत्री श्री यमुना जी की जन्म जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। अंजू जी, आपका कल का वीडियो देखे थे कि एक में आपने बताया था कि बा बनी मसीहा अनुपमा के लिए और दिए हथियार, ये डायरी में रेसिपी नाम का हथियार दिया। और दूसरा वीडियो था कि अपने पॉप की लाश से शादी करवाएगी और उसमें खुशियां मनाएगी ये आद्या, क्योंकि वो उसके पॉप की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। पॉप को वो यही समझती है, इस वीडियो में आपने अच्छे से बताया था कि वो यही समझती है कि वो पॉप को बोलेगी उठ जाओ तो उठ जाएगा, बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, उसकी अपनी कोई फीलिंग नहीं है। और आज का वीडियो था आपका कि कान्हा जी ने भेजा अनुज को अनुपमा के लिए मदद के लिए और मान टुगेदर। ये वीडियो आपका बहुत अच्छा था कि मान मिलकर हर बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना आसानी से कर सकते हैं। अभी ये अनुपमा ने भी अनुज की मदद ली और अनु ने भी अनुपमा की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और दोनों भूल गए उस समय कि आद्या ने उनको मना किया है। और मैंने आज का धारावाहिक भी देखा। आज के धारावाहिक में पहले शाह उसके बारे में बोलूँगी कि उधर अनुपमा ने कान्हा जी की पूजा की और शंख बजाने के लिए बापूजी ने कहा तो अनुपमा ने कह दिया, बा ने कह दिया कि अनुपमा तुम जंग लड़ने जा रही है। और उस समय वनराज का चुप रहना, गंदी सी स्माइल तो थी उसके चेहरे पर लेकिन वो चुप रहा है, इसका मतलब कहीं बा अच्छी बनकर बाद में ये जीत जाए तो पैसे लेने वाले ही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और पाखी की बदतमीज़ी, ना उससे अपनी बेटी संभलती है और झूठ बोल के चली गई है आरुष से मिलने, पार्लर में जा रही हूँ कह के, और इतनी बदतमीज़ी से बोलती है वो कि बापूजी और बस सबसे कि ये मैं रीछ जैसी लगूंगी। तुम्हारा मन काला है पाखी, शक्ल काली नहीं है लेकिन मन काला ज़रूर है। तो सिर्फ बोली से नहीं व्यवहार से भी तुम रीछ ही लगती हो मुझे तो। खैर, उधर आद्या ने अपने पॉप को मनाने के लिए सॉरी कार्ड बनाया और अनुज पर उसका कोई असर ना देख के उन लोगों ने गाना गाया। तो ये गाना से और अनुज ने आज अच्छे से कह दिया कि आप दोनों मुझे कुछ मेरी अपनी कोई फीलिंग है, मेरी अपनी कोई कमजोरियां हैं और मुझे इंसान समझो तो मैं रातों रात सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुरा इंसान या बुरा पॉप हूँ। और अब भी तुम लोग नहीं और मुझे मेरी हालातों से अपने तरीके से लड़ने दो। अभी अगर तुम दोनों समझती हो तो ठीक है, नहीं तो तुम अपने हिसाब से कर लो। दोनों का चेहरा, उन लोगों को लगा था कि इसको कुछ भी बोलेंगे हम और बाद में सॉरी या वो कर देंगे। अभी तो श्रुति पूरी तरह से आद्या के कंधे पे बंदूक रख के चला रही है, उसके कोई भी इरादे सामने नहीं आ रहे, खुद तो अच्छी ही बनी हुई है। और अनुपमा कंपटीशन के लिए आई तो उस समय जज ने लिमिटेड साधन और 15 मिनट में आपको ये कंपटीशन तय करनी है, ये सब बोला। और बाद में वो जो खड़ूस जज है वो अनुपमा के पास में आके इस तरह से उनका थोड़ा व्यवहार मुझे अनुपमा से अजीब सा लगा कि अनुपमा का गेटअप देखकर वो परेशान है या अनुपमा की कमजोरियां देखकर कि वो इस तरह से बोल रहे हैं कि अनुपमा तुम अपने आप निकल जाओ क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल टास्क है और हम निकाले उससे पहले निकल जाओ। तो ये अनुपमा को इरादों को हालांकि अनुपमा तो इस तरह से आदी हो चुकी है इस तरह के शब्द सुनने की कि उसे कोई बोलेगा कि ये तुम नहीं कर सकती तो वो चैलेंज समझ के करके ही दिखाती है। और आज अनुज गाड़ी में बैठ के परेशान हो रहे थे, मीटिंग के लिए जाना था उनको जहाँ पे, तो वो परेशान हो रहे थे कि मैं अनुपमा की मदद करना चाहता हूँ, कान्हा जी प्लीज़ स्पाइस एंड चटनी के लिए कोई दूसरा डोनर या कुछ
और भेज दो उनकी मदद के लिए। मैं अद्या के चलते अनुपमा तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। अनुज की मजबूरी देखकर आज थोड़ा सा अंदर से दुख हुआ, पर अभी भी अनुज खुद नहीं बोलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला अंजू जी। और यहाँ आए, वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि ये यहाँ पे मास्टर शेफ़ की शूटिंग हो रही है। तो अनुज ने अनुपमा को देखकर वो बहुत परेशान थे और अनुपमा क्या सोचेगी उन्हें यही लग रहा था। फिर भी अनुपमा के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया मदद के लिए कि अनुपमा मेरी मदद ले लो। अनुपमा चाहती तो ओपनर से खुलवा लेती थी। और अंजू जी, आज के एपिसोड में थोड़ा मुझे अजीब लगा क्योंकि जो अनुपमा ने मोहनथाल बनाया है वो लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है क्योंकि आधा घंटा तो उसमें घी और दूध का मोयन देना होता है। हम लोग उसको धाबा बोलते हैं। वो धाबा देना ज़रूरी होता है, तभी उसमें कण कण जैसी वो होती है, क्रिस्पीनेस आती है, अन्यथा नहीं। और फिर बाद में चाशनी बनानी। हालांकि अनुपमा ने चना दाल को पीस कर उसके और घी का वो नई कंटेनर खुल रहा था तो बादाम को पीस कर उसकी चिकनाई का उपयोग करके बेसन को सेक लिया। ये सब ठीक है। और अनुपमा को इलायची और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी दिए गए थे तो वो उस पर प्रेजेंटेशन भी अच्छा कर सकती थी। खैर, और अनुज ने कंटेनर खोलने में मदद की। अनु जल्दी करो। और अनुपमा ने भी उसको बिना हिचकिचाहट के मदद ली। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच रानी जी इतने मोटिवेशनल कमेंट के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। अंजू जी, मैं भूल गई कि पाखी ने आरुष ने पैसे मांगे तो पाखी ने कंगन दिए अपने सोने के और ईशानी को इग्नोर करके चली गई है। अनुपमा ने उसे डांटा तो उसे अच्छा नहीं लगा और अनुपमा ने ये कह दिया कि बचपन में हम तुम्हारे साथ ऐसा करते तो अच्छा लगता, तुम्हें अच्छा लगता क्या। तब अनुपमा ने कह दिया कि मैं ऐसी माँ नहीं हूँ कि मैं बच्चों को एक छींक आ जाए तो पागल हो जाऊँ। इस तरह से उसने वनराज के भी उसको ईगो को भी कर दिया है। और मुझे बा और वनराज पे पता नहीं क्यों शंका हो रही है क्योंकि आज तक बा का ऐसा रूप मैंने कभी देखा ही नहीं है। क्योंकि जब जब बा की तारीफ़ की है तब बा फिर से अपने असली स्वरूप में आ गई है। इसीलिए मुझे कुछ अजीब लग रहा है अंजू जी। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। थैंक यू अंजू जी। जय माता दी अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी जय माता दी। आज का एपिसोड का आरंभ अनुपमा के शंखनाद से होता है। वो अपनी युद्ध भूमि यानी सुपरस्टार शेफ के मंच पर अपने हुनर, अपनी हिम्मत से एक नई लड़ाई लड़ने जा रही है। आज बा और बाबूजी दोनों अनुपमा के पास उसका हौसला, उसकी हिम्मत बनकर खड़े हैं। बाबूजी तो शुरू से ही अनुपमा के साथ थे, लेकिन बा का ये रूप देखकर बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो बा अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन यहाँ अनुपमा की केयर करते हुए, खाना खिलाते हुए देखना अच्छा लगा। और पाखी के बारे में तो क्या कहें, ना पाखी को मैनर्स हैं, ना बड़ों का सम्मान करती है और ना ही उसके अंदर कोई लाज शर्म। हर किसी को वो एक ही तरीके से बात करती है, यानी कि बदतमीजी से। चाहे बच्चा हो या बड़ा, ना माँ से तमीज़ से बात करती है, ना ही अपनी बेटी ईशानी से। ईशानी अगर अपने बाप के साथ होती तो उसको बाप का प्यार भी मिलता और सही देखभाल भी मिलती। ये पाखी एक दिन अपने बाप का प्यार, बाप का विश्वास, पैसा, इज्जत सब पर ठोकर मारने वाली है। और एक ज़बरदस्त ठोकर तो पाखी को भी लगेगी और ज़रूर लगेगी। अनुज आध्या का पपेट और श्रुति का केयर टेकर अपने काम पर जाने लगता है तो आध्या सॉरी कहने अपने कान पकड़कर अनुज के सामने खड़ी हो जाती है। साथ में श्रुति भी अनुज का इशारों से माफ़ करने के लिए कहती है। आध्या अनुज से किस किस बात की सॉरी बोलेगी? अनुपमा का जीना मुश्किल कर दिया है इस बात की, या अनुज को इतना मजबूर कर दिया है इस बात की कि वो अब अपने फैसले भी नहीं ले पाता, या अपने गुस्से और सो कॉल्ड ट्रॉमा से अनुज को ब्लैकमेल करने पर किस किस बात की माफ़ी मांगेगी? अपने बाप को बाप नहीं तो इंसान तो समझो। और श्रुति का ये कहना
कि आद्या डर की वजह से या इनसिक्योरिटी की वजह से ऐसी स्टूपिडिटी कर देती है, तो ये डर और इनसिक्योरिटी आद्या के मन में डाली किसने? श्रुति ने, ताकि वो इस बहाने से अनुज के करीब रह सके, अनुज के घर रह सके और आद्या भी उसको ना जाने दे। श्रुति ना तो आद्या के मन से डर निकाल सकी, ना ही इनसिक्योरिटी, ना ही उसे तमीज़ सिखा सकी और ना ही उसके मन से नफ़रत निकाल सकी, और माँ बनने चली है। लेकिन आज अनुज ने भी प्रॉपर जवाब दिया। अनुज ने कहा कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे में भी कमज़ोरियाँ हैं। मैंने कोशिश करी लेकिन नहीं सफल हो पाया। मुझे अपने दुखों को हैंडल करने दो और अपने हिसाब से करने दो, मुझ पे प्रेशर मत डालो। ये सब कहकर वो चल दिया। आद्या और श्रुति अनुज की शक्ल देखती रह गईं। अनुज अभी और स्ट्रिक्ट होना है, नहीं तो तुम्हारी हालत क्या होगी ये तुम भी नहीं जानते। लेकिन फिर वही बात, कान्हा जी की मर्ज़ी के आगे किसी की भी नहीं चलती। और ये भी कान्हा जी की मर्ज़ी थी कि अनुज भी अपनी मीटिंग के लिए उसी स्टूडियो में पहुंचा जहां अनुपमा सुपरस्टार का कंपटीशन के लिए पार्ट ले रही थी। अनुज फिर भी अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर वही कान्हा जी की मर्ज़ी, अनुज को अंदर जाना पड़ा। और वहाँ उसने देखा कि अनुपमा अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से नई डिश बनाने की कोशिश कर रही है। उसको बहुत परेशानी आ रही थी। अनुपमा अपने एक हाथ से डिश बना रही है और उसके मन में यही चल रहा है कि टाइम कम है, इसलिए उसको टेंशन भी हो रही है। जज भी आज ज़रूरत से ज़्यादा सख्त। लगता है कि इस खड़ूस जज की अनुपमा से कोई दुश्मनी है, अनुपमा को हर तरह से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अनुपमा तो अनुपमा है, हार कैसे मानेगी? इस कंपटीशन में ऑडियंस की एक बार मदद ले सकते हैं रूल्स के हिसाब से। अनुपमा से डब्बा खुल नहीं रहा था और उसको डिब्बे की बहुत ज़रूरत थी। उस समय अनुज अनुपमा की मदद के लिए आया और वो डब्बा खोला। ये भी कान्हा जी की मर्ज़ी थी। कान्हा जी को भी पता है कि हर मुश्किल में अनुपमा अनुज के लिए और अनुज अनुपमा के लिए खड़े रहेंगे। आई लव मान। लेकिन अनुपमा से कंट्रोल नहीं हुआ और डिब्बा ज़मीन पर गिर गया। टाइम ख़त्म और फिर एक परीक्षा शुरू। जजिस ने इंग्लिश में डिश को समझाने के लिए कहा, लेकिन अनुपमा यहाँ इंग्लिश में कमज़ोर पड़ गई। फिर भी उसने अपनी टूटी फूटी भाषा में जजिस को समझाने की कोशिश करी, लेकिन जजिस भी खड़ूस ही थे। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन अनुपमा तुम चिंता मत करना, कान्हा जी का साथ है और अनुज उसका लकी चार्म उसके पास है। अभी फिर ठोकर लगेगी। फिर अनुपमा ठोकरों से घबराती नहीं है, फिर डबल हिम्मत से उठती है और अपनी मंजिल पर पहुंचकर रहेगी। अनुपमा, बेस्ट ऑफ लक। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और परसों हम ऑडियो सुन नहीं पाए थे, इसलिए कल हम अपने ऑडियो में अंजू जी और नवीन जी को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी नहीं बोल पाए थे, इसलिए हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अंजू जी और नवीन जी। आज आपके लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। विवाह वह खूबसूरत संयोग है जिसमें व्यक्ति को अपना सबसे बेहतरीन दोस्त मिलता है। और तुम मेरी जिद नहीं जो पूरी हो, तुम मेरी धड़कन हो जो ज़रूरी हो। ये आप दोनों लोगों के लिए ये डेडिकेटेड हैं लाइंस।
और आपको फिर से दोनों लोगों को विवाह की वार्षिक वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक हो। और रेखा जी, आपके बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखा श्री कृष्ण के शंखनाद के साथ युद्ध भूमि में जाने की तैयारी। बाघ का बदला रूप कुछ हजम नहीं हो रहा है। बस एक बार अनुपमा को जीतने दो, फिर देखना इसी बाघ का रूप। अनुपमा से कहेगी तोशु का कर्जा दे दे, फिर देखना कैसी कैंची की तरह जुबान चलाती है ये बाघ। पाखी को बात करने की भी तमीज़ नहीं है बिल्कुल, सच में। और महिलाएं कितनी संवेदनशील होती हैं। और ये बदतमीज़ को देखो, अपनी बेटी के लिए कह रही है, पीछे से टोका। पता नहीं कौन से मिशन पर जा रही है। और मिशन पर भी जा रही हो तो बच्चों का बुलाने पर कोई ऐसे कहता है क्या? दादी पोती को एक जैसी बोल रही है। और तू किसकी जैसी है पाखी? ये माँ है पाखी। वाह पाखी, बेटी को बुखार है और उसको अपने पार्लर जाने की पड़ी है। पार्लर की क्या, वहाँ से उसको आरुष के पास जो जाना है। अपनी बच्ची को बुखार में छोड़कर ऐसे कौन जाता है? पाखी माँ तो क्या, वो तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। और रियलिटी चेक दिया अनुपमा ने आज। वनराज का कहना सही, तुझसे ज़्यादा इमोशंस तो अधिक में हैं। अब आया वनराज साथ समझ में। अगर पहले अपनी इस बेलगाम पाखी को समझाया होता तो आज ये दिन न देख रहे होते। पाखी तू पूरी की पूरी प्रॉब्लम ही है। थप्पड़ लगाने का मन करता क्या होता है अनुपमा? अरे लगाए होते थप्पड़ तो अकल ठिकाने आती, पर नहीं, बोल रही हो, करोगी नहीं। तोशु वनराज के मुंह से ऑल द बेस्ट भी नहीं निकला। सच ये लोग कितने गंदे इंसान हैं। नौटंकी की दुकान। आद्या अब नाटक कर रही है। तुम्हारा नाटक आद्या अच्छा नहीं लग रहा है। अगर तुम्हारे पापा तुमको सच में प्यारे होते तो तुमको उनकी खुशी दिखती, पर नहीं, तुम अनुपमा से नफरत करने में इतनी आगे बढ़ गई हो कि क्या बताएं। श्रुति आद्या दोनों नाटक कर रही हैं बस। अनुज, तुम कुछ दिनों के लिए दोनों को उनके हाल पर छोड़ दो बस। सही रवैया अनुज। कितनी गंदी है आद्या, अपनी माँ का नाम लेती है अनुपमा जोशी। और अनुज तुमको क्या बताएं, क्यों इतना बेचारा बना घूम रहा है? और भाड़ में गई कसम। और तुम्हारे अलावा कोई और मदद कर दे स्पाइस एंड चटनी की। अरे तुम करो, क्या करेगी आद्या? कुछ नहीं करेगी। उसकी गीदड़ धमकी है बस। बहुत हिम्मत वाली है तो क्या, तो करे जाकर जो मन में हो उसका। कान्हा जी ने अनुज की सुन ली। 15 मिनट में रेसिपी बनानी है सभी को। और खड़ूस जज अनुपमा को सुना रहा है और कह रहा है कि क्विट कर लो। अनुज उस स्टूडियो में पहुंच गया जहां सुपरस्टार शेफ हो रहा है। वाह कान्हा जी वाह, आपकी महिमा सच में लाजवाब है। और शेफ के मैनेजर ने वहां बुलाया तो अनुज को तो जाना ही पड़ेगा अंदर। और ये अच्छा है, फ़ोन साइलेंट करने को कह दिया। अब दादी अम्मा कितने भी फ़ोन करें पर कुछ नहीं होगा, मज़ा आएगा। बेचारा अनुज दोनों तरफ से मारा जाता है। उधर आद्या परेशान करती है, इधर अनुपमा अनुज को ही एटीट्यूड दिखाती है। बेचारा अनुपमा के बारे में अनुज सोच ही रहा था, तब तक वही अनुज पहुंचा दिया गया जहां अनुपमा की बात चल रही थी। देखो अनुज आते ही अनुपमा की मदद करने की सोचने लगा। शुरू करो अनुपमा, खड़ी क्या हो? कैन नहीं खोल पाई तो बादाम का पेस्ट मिलाकर बनाएगी, ये सोच रही है। अनुज परेशान होकर देख रहा है। अनुज मदद करना चाह रहा है पर मजबूर है। और ऑडियंस की मदद ले रहा था एक कंसिस्टेंट। तो अनुज समझ गया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अनु की मदद कर सकता हूँ। सब खाना बना रहे हैं, वो ये जज भोंपू की तरह बोल बोल कर डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे शांति से खाना बनाने दो, हमको तो डिस्टर्बेंस होता है भाई बोलने से। अनुपमा को घी चाहिए पर खोलना नहीं आता है। अनुपमा मदद ले लो, अनुज बोल ही दिया और उसने डिब्बा खोल दिया, पर घी फैल गया। अनुपमा से अन्न का अपमान होता है, इसलिए ज़मीन पर पड़ा हुआ उठा रही हूँ। अनुज बहुत परेशान हो जाता है और खड़ूस जज देख के रह गया जब अनुपमा ने घी को अपने माथे से लगाया। अनुज अनुपमा को हिम्मत दे रहा है और सभी की डिश टेस्ट की जा रही है। अब अनुपमा की मिठाई की बात आई तो अनुपमा एक्सप्लेन कर रही है। अनुज को बहुत अच्छा लग रहा था, पर खड़ूस जज बोला इंग्लिश में एक्सप्लेन करो। और लो आरुष ले आया उसको बंद कमरे में पाखी को। और देखो ज्वेलरी लेकर आई है ये बदतमीज़ पाखी। और खुशी को एडवांस में सेलिब्रेट करने के बहाने तुम तो गई पाखी। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैम नमस्ते, मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था आज का एपिसोड की शुरुआत होती है, यहाँ पे पूजा कर रहे होते हैं। पूजी बोलते हैं कि आज तू शंखनाद कर, तो अब तक बा बोलती है तू युद्ध भूमि में जा रही है आज। इधर अनुपमा शंखनाद करने लगती है, इधर अनुपमा शंखनाद करने लगती है कि एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। बा का समझाना बहुत अच्छा लगा अनुपमा को। खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पे ध्यान दिया जाता है। तू बच्चों को समझाती है, तू खुद नहीं। मेरी डायरी संभाल के रखना, तब अनुपमा बोलती है मैं जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगी। कि पाखी तो तुम अलग ही जोन में जा रही है अभी। अनुपमा बोलती है किधर जा रही है, तो बोलती है कि पीछे से नहीं टोका करते। ये आप ही ने सिखाया है ना। सिंपल सा सवाल ही तो पूछा है कि कहाँ जा रही है। तो बनराज बोलते हैं कि सुबह सुबह कहाँ जा रही है, तो बोलती है कि वैक्सीन कराने जा रही है। कि रिच बन के तो नहीं घूम सकती ना, तो कुछ भी बन के घूम सकती है भाई। उसको किसी चीज का असर नहीं हो रहा है। फिर बाप बोलती है कि दादा और बाप का लिहाज तो थोड़ा सा कर, बेशरम कहीं की। लेकिन उसके नेचर में वो प्रोवाइड हो चुका है वो सब चीजें। सच बोलूं तो भी प्रॉब्लम, दोस्तों जा इसे छोड़ के आ बेटा। बोलती है कोई जरूरत नहीं है, पार्लर घर के सामने ही और किंजल भाभी की फ्रेंड का है। किंजल बोलती है मैंने अपॉइंटमेंट लिया था वहाँ से। कि आप सबकी आ गया तो मैं जाऊँ? अरे इतनी बदतमीज लड़की है। तो उसको पूरी तरीके से सिर्फ खाने पे ही ध्यान दिया है। इधर ईशानी आती है और आके पीछे से हक कर लेती है मामा बोलते हुए। तो बोलती है दादी और पोती दोनों का एक ही जैसा है। कि दादी और पोती दोनों एक जैसी ही है। वो दादी थोड़ी लगेगी, नानी लगेगी ना उसकी। ईशानी आती है, उसके बाल पूरे बिखरे हुए रहते हैं। तो बोलती है व्हाट इज दिस, भी बाल ऐसे कैसे है तुम्हारे? डिम्पी का बोलना कि वो सो के उठी है अभी वो। तो पाखी मैडम बोलती है कि क्या हुआ, तो होलिया ठीक करके निकलना चाहिए ना रूम में से। अभी छोटी सी बच्ची क्या समझेगी वो। लुक एंड गुड, उसको किसके सामने प्रेजेंट करना है भाई? वो भी तो बच्ची है, वो अभी उसके खेलने खाने की उम्र है, उसमें वो लुक कर रही है उसको। तब तक काव्या बोलती है कि बच्चों को जैसे रहने दो ना, इस उम्र में लुक्स को लेके कॉन्सेंट मत करो। इसको बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है कि हर किसी को इस घर में लेक्चर ही देना होता है। किसानी बोलती है मम्मा मुझे ठंडू जैसा फील हो रहा है। ऐसी लड़कियां माँ के नाम पे कलंक होती हैं। ये पहले माँ बनने के लिए रोती थी, अब उसके अंदर ममता 1% भी नहीं है कि मामी से दवाई ले लो, लेके सो जाओ खा के। किसानी प्लीज इरिटेट मत कर मुझे कि अब किसी के बोलने का असर नहीं होता है उसके ऊपर। वो बोलती है कि मैंने भी बचपन में तुझे ऐसे ही बोला था कि डोंट इरिटेट, तो तुझे अच्छा लगता? तुझे एक छींक आती थी तो तेरे पापा तेरे लिए डॉक्टर बुला लेते थे। तब तेरे साथ अगर हम लोग ऐसा करते तो बोलती है वो आप लोग का तरीका है। मैं उन पेरेंट्स में से नहीं हूँ कि थोड़ी सी छींक आ जाए तो पूरा घर सर पे उठा लेते थे, एकदम पागल हो जाए। तो बा बोलती तो हमेशा से ही पागल है। तो बनराज बोलते तुझसे ज़्यादा इमोशन तो अधिक में है। इनफ। इनवट आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि कुछ देख ही नहीं सकते। 2-4 दिन के आए हुए लड़की का बोली बोलने लगी है। तो अभी से कि आरुष सही कहता था, लड़की जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसको पीछे खींचने वाली सबसे बड़ी उसकी फैमिली ही होती है, पहले होती है। सॉरी, आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम है। बाकी मैडम तो बेचारी बदतमीजी करके 10 चली गई अभी। बाकी वो कौन सा पहाड़ डालना था, 10-15 मिनट अपनी बेटी के साथ बैठ जाती तो वो सो जाती उतने टाइम में। तो उतने टाइम में बदतमीजी कर रही है वहाँ पे। इधर आद्या मैडम और श्रुति दोनों सॉरी बोल रहे होते हैं अनुज को। श्रुति मैडम के एक्सप्रेशन वैसे ही रहते हैं कि माफ़ कर दो उसको। लगता है पॉप्स ऐसे नहीं मानेंगे, हमें कुछ और करना पड़ेगा। सॉरी जैसा एक बोर्ड लेके सॉरी पॉप्स गिरती रहती है। श्रुति मैडम बोलती हैं कि कभी कभी अपने डर और इनसिक्योरिटी में वो सब गलतियाँ कर जाती हैं। जस्ट रोली सॉरी। अनुज का बोलना बहुत बढ़िया लगा आज। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपके पॉप्स भी एक इंसान है, वो हर इंसान की तरह उनकी भी कमजोरियां हैं, मजबूरियां हैं कि मैं सब कुछ एक झटके में नहीं बदल सकता हूँ। मैंने कोशिश करके देखा पर मुझसे नहीं हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, एक बुरा पॉप्स हूँ, बुरा एक डैड हूँ। आस्किंग यू कि तुम लोग थोड़ा सा भरोसा करो मुझ पर। मुझे अपने दुखों को अपनी तरीके से हैंडल करने दो। प्लीज़ डोंट फोर्स इट, कि मुझे फोर्स मत करो। यदि तुम दोनों को लगता है कि मैंने तुम दोनों से कुछ ज़्यादा मांग लिया है तो कैन सो बी इट, कि तुम दोनों की मर्जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे को लगा नहीं कि अनुज की माफ़ कर देगा, पर अच्छा किया अनुज ने कि माफ़ नहीं किया है लोग को। नहीं तो आद्या बार बार वही गलती करती है, फिर बाद में सॉरी बोलती है। फिर अनुपमा का नेक्स्ट राउंड चालू हो गया। आई होप कि मेरे अलावा कोई इस पैसन चटनी को हेल्प कर दे
कि अनु मैं हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन आद्या कि प्लीज़ समबडी हेल्प। जहाँ पे अनुपमा का कुकिंग शो हो रहा होता है वहीं पे अनुज का मीटिंग भी आ जाता है। सुपर सेफ पे सुपर सेफ शूट यहाँ पे हो रहा है कि अनु भी अंदर हो गई। मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाएगा तो फिर उनके मैनेजर से मिलेगा कैसे हो। ये तब तक 10 एक लड़की आती है, मिस्टर कबाड़िया अंदर जाने के लिए फ़ोन साइलेंट पे कर दीजिए प्लीज़। अनु की शूटिंग यहाँ हो रही है, अनु देखेगी तो क्या सोचेगी पता नहीं, मुझे देख लिया तो फिर यहाँ पे क्या सोचेगी। अनुज ऐसे सर मारे जैसे पहली बार अनुपमा से मिलने आया हो। खड़ूस बुड्ढा एकदम अनुपमा के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ गया, ये वो करते रहता है उधर। तो जाके वहाँ पे खड़े होते थोड़ा अनुपमा कॉन्शियस हो जाती है बार बार। बाकी थैंक यू अंजू मैम, नमस्ते सबको, नमस्ते, थैंक यू सो मच। Hello Anju ji, this is Rita and good morning to everyone. And first of all, thank you so much. सभी का तहे दिल से थैंक यू कल की विशेस के लिए। आज का शो ठीक ठाक था। शो की शुरुआत वही अनुपमा को सब विशेस देते हैं एंड बाकी के बारे में तो क्या ही कहे, वो तो बिल्कुल ही एक ऑफ माइंड क्रीचर है। अनुपमा कंपटीशन के लिए पहुंचती है और वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि उन लोग के पास सिर्फ 15 मिनट्स है और जो भी इंग्रेडिएंट्स दिए जाएंगे उसी में उनको कुक करना है। जो जज कीथ होता है वो अनुपमा को कुछ ज़्यादा ही ऐसा लग रहा था कि उसे प्रेशराइज कर रहा है, उसको और नर्वस कर रहा है। मेरे को इस शो में एक चीज़ समझ में नहीं आई। अनुपमा को वैसे दिखाया गया कि शी इज़ बहुत माहिर है कुकिंग में और चाहे कितना भी प्रेशर हो वो उसके 10 हाथ का इस्तेमाल करती है इन अ वे कुकिंग करने में। लेकिन यहाँ पे उसको ऐसे दिखाया कि जैसे वो बहुत एमेच्योर कुक है, जिससे क्योंकि जो एमेच्योर्स होते हैं वही इतने नर्वस होते हैं। एक माहिर कुक जो होता है, जो कुकिंग में माहिर होता है, उसे इतना नर्वसनेस नहीं होता है। एनीवेज पहले राउंड में हमने देखा था कि अनुपमा ने 10 मिनट वेस्ट किए थे और इस राउंड में उसने देखा है 5 मिनट वेस्ट कर दिए। वहाँ अनुज के घर पे अनुज कहीं जाने के लिए निकलता है, ऑफिस जाने के लिए, लेकिन जो अभी जो सीन था श्रुति और आध्या का बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक था और इतना बड़ा ड्रामा, वो गाना पापा वाला समथिंग बिल्कुल ही बकवास लगा। बस अनुज का एक डायलॉग अच्छा लगा कि उसने ये कहा डोंट फोर्स एनीथिंग ऑन हिम, वो अपने दुख और दर्द अपने तरीके से हैंडल करेगा। दैट वाज नाइस। एंड अनुज वाइल ड्राइविंग बस ये प्रे करता है कि कोई हेल्प करे, स्पाइस एंड चटनी की, अनुपमा की कोई हेल्प करे। लेकिन उसको इतने में टेक्स्ट मैसेज आ जाता है और ये कान्हा जी का ही इशारा है कि उसे स्टूडियो पहुंचने के लिए बोला जाता है, जहां उसे शेफ़ पॉल से मिलना है। जब वो स्टूडियो पहुंचता है उसे पता लगता है कि सुपरस्टार शेफ़ कुकिंग कंपटीशन इसी स्टूडियो में हो रहा है। वो ही थिंक्स कि उसे जाना नहीं चाहिए अंदर, क्योंकि अनुपमा क्या सोचेगी। बट जो वॉलंटियर होती है उसको गाइड करके अंदर ले जाती है और बैठा देती है। तो देन ही थिंक्स कि वो शायद ही कैन हेल्प अनुपमा इन सम और द अदर वे। अनुपमा सोच में लगी होती है और किसी तरह समहाउ उसने मैनेज करती है कुकिंग, बट उससे वो ऑयल का डब्बा नहीं खुलता क्योंकि उसे कैन ओपनर से खोलना ही नहीं आता है कैन। इतने में याद आता है उसे कि शी कैन टेक हेल्प फ्रॉम द ऑडियंस। और अनुज बुलाता है अनुपमा को और उसे कहता है कि टाइम नहीं है, जल्दी आओ। अनुपमा देखती रह जाती है कि अनुज कहाँ से आ गया। वहीं पे वो कपल ऑफ मिनट्स शी वेस्ट, सो ही कॉल्स हर एंड वो डब्बा खोल के देता है।
वो कैन खोल के देता है। वो अनुपमा उस ऑयल को डालने लगती है तो उसके हाथ से गिर जाता है और भी नर्वस हो जाती है। एंड शेफ सॉरी जो जज कीथ है वो तो वैसे ही इज पिस्ड ऑफ। एंड आगे देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि प्री कैप तो दिखाया नहीं है। और पाखी अगेन जो सीन था दैट आरुष वो अपने घर लेकर आता है एंड ही इज़ अप टू समथिंग। और बेवकूफ़ पाखी अपनी ज्वेलरी देती है उसको कि इससे लोन मिल जाए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो कान्हा जी की जयकार से कृष्णा कन्हैया लाल की जय से शुरुआत हुई, बहुत अच्छा लगा। बापू जी ने शंखनाद करने के लिए अनुपमा को, वो भी बहुत अच्छा लगा। बा ने सपोर्ट किया, बा ने कहा कि तू युद्ध भूमि में जा रही है तो शंखनाद तो करना है, ये तुझे बहुत अच्छा लगा। वो शंखनाद का आवाज़ वाकई में प्रफुल्लित करता है। वो टीवी में से सुनाई दो या रियल में कहीं से सुनाए, बहुत अच्छा लगता है। वो सही में बहुत सही लगता है, अच्छा लगा। शुरुआत बहुत अच्छी शो की भी, और हम लोगों का सुबह की शुरुआत भी अच्छी हुई शंखनाद की आवाज़ से, और अच्छा लगा। और फिर पाखी की बदतमीजी हमने देखी। पाखी तो अनुपमा समझा रही है कि तेरे पर उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पाखी के बारे में ज़्यादा बोलना ही क्या है, पाखी बदतमीज़ है। इशारी को भी है ना, उसके सामने इशारी के साथ कितना बुरा बिहेवियर कर रही है, छोड़ के चले गई उसको। अनुपमा ने समझाया, बट क्या बोले पाखी को। और इधर अनुपमा स्टूडियो पहुंच गई है, वहाँ पे तैयारी शुरू है, शो की स्टार्टिंग की तैयारी। उन्हें समझाया जा रहा है कि कैसे क्या करना है। आप आज सिर्फ 15 मिनट मिले हैं इन लोगों को अपना डिश कंप्लीट करने के लिए और प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो बहुत टफ है कंपटीशन आज। अनुपमा ने देख लिया, सुना, और फिर घबरा गई अनुपमा। वो 15 मिनट में मैं कैसे करूँगी क्या, उसको लगा एक हाथ में, और फिर वो कंटेनर भी नहीं खुल रहा है घी का, उससे कोशिश की पर नहीं खुल रहा है उससे। और यहाँ पे अनुज का दिखाते हैं पहले कि अनुज को भी यहाँ पे अपने घर से निकल रहा है, तो आद्या ने आज बेटी बनी, आद्या अम्मा बनी अनुपमा अनुज की। बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कैसे हो गया भाई, कल तक बड़ी बड़ी पाए ना ऐसा। ये अनुज कल बहुत ही हाँ इन्हें लाचार और अपराधी जैसा लग रहा था, आज अनुज अच्छा लगा। अनुज ने अच्छा इन्हें गुस्सा दिखाया, इन्हें कल थोड़ा सा शायद मुझे लगता कि मेकर ने यहाँ पे थोड़ी स्टोरी चेंज की, यहाँ पे डायलॉग चेंज किया, अनुज को गुस्सा दिखाया। सच में अनुज अच्छे लगे, और ऐसे डटे रहो, बिल्कुल इन दोनों को अक्ल ठिकाने लाओ। ये तुम्हारे कोई गॉडफादर नहीं है, इनको समझाओ, ये तरीका नहीं है ज़बरदस्ती कराने का, और तुम कोई मशीन नहीं हो, इंसान हो। बताओ इनको। आज बहुत अच्छा लगा, और कंटिन्यू रहना ऐसा, बिल्कुल नहीं चेंज होना चाहिए। अनुज का भी कैरेक्टर अच्छा लगा। अनुज ने उनको दोनों को डांटा, भले खूब जोर से नहीं पर अच्छे से कहा कि मैं मशीन नहीं हूँ, वैल्यू बताई अपनी, और कहा कि मेरा दर्द है, मैं अपनी तरह से हैंडल करूँगा, और मैं एकदम से सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, तुम चाहोगे तो ऐसा नहीं होगा। दोनों को होता है कि दोनों ही सुन लो मेरी बात, ज़बरदस्ती करोगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। तुम लोगों को मेरे से ज़्यादा उम्मीद है तो फिर देख लो भाई। बहुत अच्छा लगा अनुज का आज का सीन, बहुत अच्छा लगा। बहुत ने सच में उसमें फिर से प्यार आया, और अनुज अच्छा लगा यहाँ पे मुझे। और फिर उसके बाद वो घर से निकलता है तो वो इस पैसन चट्टी के लिए सोच रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, आद्या ने कसम दे दी तो, पर कोई मिल जाए कान्हा जी से प्रेयर लो। कान्हा जी ने सुन लिया। अनुज वहीं से कॉल आया जहाँ अनुज को जहाँ अनुपमा है, वो बोलता है स्टूडियो में जाना है। आश्चर्य लगता है उसको कि उसको पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ जा रहा है। उसको बुलाया तो वो गया वहाँ पे, देखा तो अनुपमा भी वहीं पे शूटिंग कर रही है। उसको पता चला तो कहता है कि अब मैं अंदर कैसे जाऊँ, जज अंदर है, जज से मिलना भी ज़रूरी है, बात भी करना ज़रूरी है, मैं अंदर नहीं। अंदर गया तो फिर क्या सोचेगी अनु, उसको यही लग रहा है। पर वो पलटने ही वाला होता तो वो लेडीज़ बुला लेती उसे अंदर। तो ये कान्हा जी का ही इशारा है, वाकई में कान्हा जी ने भेजा अनुपमा को, अनुपमा के मदद के लिए। आज ऑडियंस के हेल्प ले सकते हैं ऐसा जजेस ने बताया, पर अनुपमा को बाद में समझ में आया, पहले नहीं आया वो जब कंटेनर खोले, उसे अपना पहले काम चला लिया फास्ट करने की कोशिश में, कि बाकी सीख उसे याद आ गई कि
घी और तेल अगर ना हो तो बादाम को पीस के काम चलाया जा सकता है, चिकनाहट का काम करती है वो। तो उसने अच्छा किया, वो क्या रहा, उसने बना लिया एक टाइम में, बट 5 मिनट बचे थे उसके पास। पर वहाँ पे क्या, वो कंटेनर फिर से उसने कहा कि प्रेजेंटेशन के लिए और अच्छा और यानी वो बर्फ़ी बन जाए ऐसे, उसके लिए घी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसे घी का उसे कंटेनर खुल नहीं रहता, उसे कभी उस स्टोर को यूज़ नहीं किया, वो जिससे वो जो था ना उसका खोलने का जो क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम नहीं आ रहा है, मैं भी यूज़ नहीं करती। मैं तो हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिशियन है हमारे, तो वो पानी पिंचेस वगैरह रहते हैं उससे खोल देते हैं, तो कभी काम नहीं पड़ा उन सब का किचन में यूज़ करने का, तो वो मुझे नाम नहीं पता। और अनुपमा भी नहीं जानती, वो कभी खोला नहीं उसने। और यहाँ पे उसने अनुज ने फिर उसको कहा कि मैं खोल देता हूँ, आवाज़ दिया अनुपमा जल्दी आओ। अनुपमा भी देखते रह जाती कि अनुज यहाँ कैसे, और वो जाती है दौड़ के, पर वो टाइम आउट उसका गिर जाता है, टाइम आउट हो जाता है। पर कंप्लीट हुई डिश, मुझे लगता है अनुपमा की डिश कंप्लीट हुई, क्योंकि उसके बाद में उसने जो कहा था कि घी और तेल की जगह बादाम पीस के किया तो काम चल जाता है, पर वो और प्रेजेंटेशन नहीं कर पाई। हाँ, वहाँ उसके थोड़े माइनस मार्किंग में जा सकते हैं, माइनस का मार्क कट सकते हैं उसके वहाँ पे, ये इसलिए वो डेंजर जोन बताया। वहाँ बेचारी घबरा गई, उसको वो इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं करता है, मराठी मुँह से निकलता है मेरे, हिंदी में बता रही है वो, पर उनको नहीं समझ में आया, वो डांट देते हैं, ज़ोर से डांट देते हैं। फिर यहाँ पे शो भी आज का हुआ, पर जो रिकैप में दिखाते हैं हम जो देख रहे हैं 2 दिन से प्रोमो, तो यहाँ अनुज ट्रांसलेशन करते दिखाएगा, वो अपना ऑडियंस वाला बताएगा कि ऑडियंस हेल्प कर सकती है, ट्रांसलेट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ वो ऐसा हो सकता है, वहाँ गया है तो जजेस ने बुलाया है, तो तीनों में से कोई एक होगा उसके पहचान का, जो उससे परमिशन मिल जाएगी ट्रांसलेट करने की। अनुपमा को डेंजर जोन में अनुपमा गई जरूर है, पर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऑडियंस का वोटिंग, वहाँ बैठी जो ऑडियंस उनके वोटिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे अनुपमा जीतेगी, अच्छा लगेगा, वो तो होगा ही। अनुज को भेजा है जो कान्हा जी ने, तो अच्छे लगे। मान का आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा अंजू जी, आपने जो अभी कहा कि कान्हा जी ने भेज दिया अनुज को अनुपमा की मदद के लिए, और दोनों का साथ में देखना वाकई में अच्छा लगा। वो सब भूल जाते हैं दोनों के, वाकई वो दोनों भी भूल गए कि हमको दोनों को इग्नोर करना है, एक दूसरे से दूर रहना है, पर आज दोनों साथ में मिलकर। और जब जिस तरह से अनुपमा देखती है ना, जब वो जजेस के फैसले के पहले अनुज की तरफ, तो उसे वो कहता भी, हिम्मत भी दिलाता कि हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो वहाँ वो होगा थोड़ा मुश्किल, अब अनुपमा के रास्ते में मुश्किल नहीं आए तो कैसे शो, है ना। तो यहाँ पे वो ऑडियंस के वोटिंग का खेल चल सकता है, ऐसा लगता है मुझे। और क्योंकि वो दूसरा बंदा ऐसा खुश होते हुए दिखाया है ना अनुपमा को एकदम डेंजर जोन में। तो एक और बात है कि कल मुझे और हंसी भी आ रही है अभी, कि डेंजर जोन में तो अनुज भी जाएगा, क्योंकि यहाँ अध्या को जब पता चलेगा ना कि बॉब्स तो वहाँ पहुँच गए अनुपमा की मदद करने, तो यहाँ पे वो, क्योंकि लाइव दिखाएंगे तो दिखेगा ना अपने बॉब्स, तो यहाँ वही मुझे लगता है कि फिर उस पर अम्मा है ना जो घर में बैठी अनुज के, तो डेंजर जोन में अनुज को डालेगी फिर से। तो यहाँ अनुज फिर से हो सकता है रूडली उसको कहेगा कि तुम्हारी बदतमीज़ी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है, कुछ ऐसा जो भी है उसे ये भी कहा। और ये बात है कि यहाँ पे अभी मान आमने सामने है, वहाँ पे और कोई नहीं है, तो यहाँ दोनों बात करते हुए दिख सकते हैं। ऐसा लगता है कि आधे उस दिन की बात को अनुपमा कहेगी कि सॉरी उस दिन मैंने जानबूझ के नहीं किया, हो गया, सॉरी बोलेगी ज़रूर। और वो भी बोलेगा कि नहीं आध्या की गलती है, आध्या ने थोड़ा ज़्यादा बदतमीज़ी करती है, जो भी ऐसा है। तो यहाँ आध्या को लेके बात होगी कि ये ऐसी कैसे रहेगा, हमेशा हमेशा कैसे रह सकता है, इतनी ज़बरदस्ती कैसे करवा सकती है। तो यहाँ पे आध्या को वाला जो आएगा ना सुधारने वाला, यहाँ वो ट्रैक दिखा सकते हैं, आध्या को सुधारने का शुरू हो जाएगा जो प्रोमो दिखा रहे हैं। तो हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा होगा। अनुज भी थोड़ा स्ट्रांगली अभी ले रहा है, तो वो डरेगा नहीं अभी। हाँ, ये बात है ना कि अनुपमा जहाँ बोलती है ना, साथ देने की बात करती है, तो अनुज को हिम्मत आती है, तो यहाँ वो डरेगा नहीं, अभी वो सोचेगा भी नहीं। और सुधारने वाली बात तो यहाँ हो सकता है, उसकी हिम्मत बढ़ेगी अनुज की। कल हमने इस बारे में बात भी की थी, तो यहाँ ऐसा लगता है थोड़ा। और रही बात पाखी की, पाखी ने खुद को भी डेंजर जोन में डाल दिया, नहीं सुन रही ना, अपने मन की कर रही है, वो ले आया उसको अपने घर,
क्या इतनी सी बात पाखी समझती नहीं कि पाखी अब बच्ची है, टीनेजर है, जो उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो घर ले जा रहा है और वो ड्रिंक का ऑफर कर रहा है उसको, तब पता नहीं पाखी क्या करेगी, पाखी को कैसे बचेगी या फिर कुछ गलत होगा उसके साथ, कैसे बचाएगी अनुपमा कहाँ कहाँ पहुँचेगी, ये थोड़ा सा देखते हैं अभी आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भेजने के लिए। जो अभी भी नहीं भेज पा रहे हैं, चाहते हैं भेजना, उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.